अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। AK न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहसिन अहमद खान। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। रियासती वजीर जंगलात व माहौलियात इंद्रकिरण रेड्डी और जिला कलेक्टर निर्मल मुशर्रफ अली फारूकी ने धान की खरीदारी मुकम्मल करने पर अहदेदारों को मुबारकबाद पेश की और कलेक्ट्रेट निर्मल कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़िदा जायजा इजलास से खिताब करते हुए रियासती वजीर इंद्रकिरण रेड्डी ने कहा कि इन्हें खुशी है कि सबके ताउन से धान की खरीदारी को मुकम्मल कर लिया गया है। कोविड-19 कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सख्त इक़दाम उठाए गए थे और कामयाबी हासिल की गई। कोविड-19 केसेस में कमी वाक़ई हुई है और सिर्फ 5 ही मुस्बत केस सामने आए हैं, जहां मुस्बत केसों की तादाद कम हो रही है। निर्मल जिले में ब्लैक फंगस के कल 14 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 4 की मौत हो गई है और 10 बाजियाब कराए गए हैं। रियासती तेलंगाना हुकूमत के जरिए किए गए नए डिजिटल अराजी के सर्वे के एक हिस्से के तौर पर निर्मल जिला के सोन मंडल मौजे पाकपटला देहात का इंतखाब किया गया है और हुकूमत को तफसीलात भिजवा दिया गया है। और इस मीटिंग में मुख्तलिफ उमूर पर, जिनमें डबल बेडरूम मकानात को जल्द मुकम्मल किया जाना चाहिए। इस मीटिंग में जिला कलेक्टर निर्मल मुशर्रफ अली फारूकी, इंचार्ज SP प्रवीण कुमार, ZP चेयरपर्सन निर्मल विजयलक्ष्मी, एडिशनल कलेक्टर हेमंत P रामबाबू, मुख्तलिफ महकमे के जिला सतह के ऑफिसरान व दीगर ने शिरकत की। जिला परिषद चेयरपर्सन श्रीमती K विजयलक्ष्मी रामकृष्ण మొట్టమొదటిగా మనము ప్రొక్యూర్మెంట్ తర్వాత వ్యవసాయము వర్షాలు ఎవ్రీడే వరకు వస్తుందని చెప్పి సూచనలు వస్తూ ఉన్నాయి. ఇవాళ నుంచి హెవీ రెయిన్స్ అని చెప్పి ఫోర్కాస్ట్లో ఉంది. దానికి మన జిల్లా కలెక్టర్ గారి ఆధ్వర్యంలో మెడిసా కలెక్టర్ గారు, DSO గారు, వివిధ DCO గారు కానీ, అదేవిధంగా DRDA, DCMS ప్రొక్యూర్మెంట్ కానీ, IKT కానీ, ట్యాక్స్ కానీ, వీళ్ళందరూ కూడా ఎన్నో ఇబ్బందులు ఉన్నా కానీ వాళ్ళు ఇన్ టైంలో ప్రొక్యూర్మెంట్ కూడా కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళందరికీ కూడా రైతుల ధాన్యం కలిసే విధంగా మనము దానికి అవకాశం ఇవ్వకుండా ఇన్ టైంలో వాళ్ళు కంప్లీట్ చేస్తున్నామని చెప్పి నివేదిక రావడం జరిగింది. వాళ్ళందరికీ హృదయపూర్వకంగా ప్రభుత్వం తరఫున, మా తరఫున మనకి అలాగే అందరికి కూడా కంగ్రాచులేషన్స్, అందరికి థ్యాంక్స్ కూడా చెప్తాం. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం కోవిడ్ విషయాలు కూడా ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం అదే ఉంది కాబట్టి కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ కానీ, కోవిడ్లో గత మార్చి నుంచి, పోయిన సంవత్సరం మార్చి నుంచి ఈ సంవత్సరం వరకు కూడా ఎన్నో అనుభవాలు వచ్చాయి మనకు. మనం నిజంగా కూడా ఒక్కొక్క 2 సార్లు కొద్దిగా ప్యానిక్ అయినా కానీ మనం నిలదొక్కుతున్నాము. ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ మనం టీవీలలో కానీ, పత్రికలలో కానీ మన నార్త్ తెలంగాణ, ఆదిలాబాద్, నిర్మల్ ఇది 0 పాయింట్కి రావడం జరిగింది. 0.2 మనం చెప్తున్నారు కాబట్టి మరి అది కూడా జిల్లా కలెక్టర్ గారి ఆధ్వర్యంలో మెడికల్ AMS గారి హాస్పిటల్ సెక్రటరీ, ఆల్ PSCs, ఆశా వర్కర్లు, అదేవిధంగా అంగన్వాడీ హౌస్ టు హౌస్ సర్వే చేయడం వల్ల మనకు చాలా ఫాస్ట్గా మనకు రికగ్నైజ్ వచ్చింది. మనకు అవే ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి కిట్ ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఉండి ఎక్కడ పోకుండా, హాస్పిటల్ పోకుండా, ఖర్చు పెట్టుకోకుండా, ఏదైనా ఉంటే సలహాలు డాక్టర్లకు ఫోన్ చేసి సలహా తీసుకుని హోమ్ ఐసోలేషన్ ఉండి వాళ్ళందరూ కూడా మరి విజయం సాధించరు. మన నిర్మల్లో చూస్తే కోవిడ్ పేషెంట్ బాధితుల్లో 2-3 ఉన్నారు హాస్పిటల్, అంతకంటే ఎక్కువ లేవు. అది కూడా కంట్రోల్ అయిపోతే మనము పూర్తిగా నిర్మల్లో అన్ని రకాలుగా మనం ఎంతో కష్టపడి ఇది సాధించుకున్నాము. కూడా ఏదైతే రిలాక్సేషన్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు కట్టుదిట్టంగా నిర్ణయం తీసుకొని వాళ్ళు కూడా రోడ్ల మీద ఈ ఆకతాయి తిరుగుతూ ఉంటారు. వాళ్ళు ఏం పనిలే వాళ్ళని కూడా పట్టి మరి వ్యాన్లో కూర్చోబెట్టి హాస్పిటల్ పంపించి అందరికీ టెస్ట్ చేస్తే ఒకరికో ఇద్దరికో పాజిటివ్ వచ్చింది తప్ప అందరికీ కూడా నెగిటివ్ రావాలి. దానివల్ల కూడా తిరగడం కూడా తగ్గింది. మన ముఖ్యమంత్రి గారు క్యాబినెట్ మీటింగ్లో కూడా దాన్ని అప్రిషియేట్ చేయడం ఎంటైర్ స్టేట్లో DGP గారు కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు కృతజ్ఞతలు చెప్పారు. మన దగ్గర కూడా మన SP గారికి కృతజ్ఞతలు. ఎందుకంటే
పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఎక్కడ కూడా చెడ్డ పేరు రాకుండా ఒక మంచి సాంప్రదాయంగా ఒక మంచి మాట్లాడి మనకు అన్ని quickly reiterate the agenda points that we are going to discuss today. First, water supply, then agriculture land survey, integrated district tracking procurement, EDA system, pending Rashtriya cards. So, please remarks, we will start the discussion. Sir, welcome. रुकने असेंबली मधोल जी विठल रेड्डी ने सीएम रिलीफ फंड से अस्मा बेगम को 1 लाख और इकरामुद्दीन को 1 लाख जुमला 2 लाख रुपयों के चेक्स आज भैंसा आईबी गेस्ट हाउस में मुतासिरीन के हवाले किए गए। इस मौके पर मुतासिरीन ने रुकने असेंबली मधोल जी विठल रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर इनके हमरा पी कृष्णा सदर नशीन जराई मार्केट भैंसा, सैयद आसिफ नायब सदर नशीन एएमसी भैंसा, फारूक अहमद सिद्दीकी टीआरएस टाउन सदर भैंसा, अब्दुल अहाद, प्रसन्नजीत आगरे, सोलंकी भीमराव, कासिम भंडारी, रसूल कुरैशी, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद मुखीम के अलावा दीगर मौजूद थे। हमारे को सुना नहीं आ रहा है। आपका शुक्रिया अदा करते हैं। खाना अब्दुल मिनाज की तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसमें गवर्नमेंट बच्चों को दवाखाने में इलाज किया गया। अब हालात के हिसाब से गवर्नमेंट से जो हमारे एमएलए साहब जी बैठे थे साहब, इनको सीएम फंड से कितना का चेक 1 लाख का चेक मंजूर करा के लेकर आए। इसी सिलसिले में इनको ये चेक दिया जा रहा है। एमएलए जी विठल रेड्डी साहब भैंसा गेस्ट हाउस में 2 लाख रुपए के चेक 2 इस्तेफादा कुनिंदगान में तकसीम किए, जिनमें एक अस्मा बेगम और इकरामुद्दीन है। और ये लोग सीएम प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने के बाद एक फ़ाइल लेकर आए थे। एमएलए साहब ये हमारा खर्चा हो गया और आप जितना हो सके हमारी मदद कराइए बोलकर, जिस पर एमएलए साहब ने कहा कि बिल्कुल मैं जितना हो सके आप लोगों की कोशिश करता हूँ बोल के कुछ ही दिनों में दोनों को 1-1 लाख रुपये ला के दिए आज, जिसका जनाब वो हमारे मिनहाज मियाँ शुक्रिया अदा करें और साथ ही साथ हम तमाम लोग एमएलए साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जो माइनॉरिटीज़ के लिए इन्होंने जो काम कर रहे हैं भैंसा में या मुधल तालुके में, जितने भी इनके काम हैं ये हर कोई हफ्ता 15 दिन महीना बराबर सीएम रिलीफ फंड के ज़रिए से ये इन्होंने जो चेक्स ला के दे रहे 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, 3 लाख रुपये, 50,000, 60,000, इस तरीके से जो लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे। मैं समझता हूँ तेलंगाना में कोई हल्का ऐसा नहीं है जहाँ पे इतना लोग फ़ायदा उठा रहे। ये मधोल तालुके में लोग जितना फ़ायदा उठा रहे तेलंगाना के किसी भी हल्के में लोग इतना फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। मैं और भैंसे की और मधोल तालुके की आवाम से पुरजोर अपील करता हूँ कि अगर आप लोगों का हॉस्पिटल्स में अगर कोई बिल बड़े बड़े बिल्स है तो आप बिल्कुल आइए हमारे पास और एमएलए साहब के पास आइए, आके फ़ायदा उठाइए। रियासती वजीर ए इंद्र किरण रेड्डी ने आज जिला कलेक्ट्रेट दफ्तर के अहाते में मौजूद कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा करते हुए मुआयना और मुकम्मल जायजा लिया और तिब्बी अमले को हिदायत दी कि वो वैक्सीन लेने आने वाले अफराद का ताउन करें। इस मौके पर इनके हमरा जिला कलेक्टर निर्मल मुशर्रफ अली फारूकी, सदर नशीन बल्दिया निर्मल जी ईश्वर, एडिशनल कलेक्टर हेमंत और राम बाबू के अलावा महकमे सेहत के जिला मेडिकल ऑफिसर धनराज व दीगर मौजूद थे।
पुलिस कमिश्नर की हिदायत के बाद बेंगलुरु के मधुसूदन रेड्डी और इनके साथियों ने 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदकर आज जिला कलेक्टर निर्मल मुशर्रफ अली फारूकी के हवाले किया। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर हेमंत, जिला इंचार्ज एसपी प्रवीण कुमार व डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर धनराज के अलावा दीगर मौजूद थे। जिला कलेक्टर निर्मल मुशर्रफ अली फारूकी ने मंडल के जाम में चावल की खरीदारी मराकज़ का मुआयना किया। जिला में आज धान की खरीदारी को मुकम्मल करने पर जिला कलेक्टर ने ओहदेदारान को मुबारकबाद पेश की। जिला दफ्तर जंगलात निर्मल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर निर्मल विकास मीना, IFSO फॉरेस्ट डिविजनल ऑफिसर निर्मल विक्रम सिंह ने जंगलात की वजह से ही शरशब व शादाबी मुमकिन हो पाती है। अगर हम इन जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ ही ना करें तो फिर हरीता हरम या इस तरह के किसी भी प्रोग्राम का मकसद फौत हो जाएगा। जंगलात की लकड़ी की स्मगलिंग की वजह से जंगलात को बेशुमार नुकसानात पहुँचते हैं। इस मौके पर FRO निर्मल जयपाल रेड्डी व दीगर मौजूद थे। ऑनरेबल CM सर की विजन है एंड आर फॉरेस्ट ऑनरेबल फॉरेस्ट मिनिस्टर सर की जो विजन है जंगल बचाओ, उसके अकॉर्डिंग हम हर मेजर ले रहे हैं वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट और हमारी जो फॉरेस्ट वेल्थ है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। इस विजन को अचीव करने के लिए सारे मेजर लिए जा रहे हैं, इवन स्ट्रिंजेंट एक्शन लिया जा रहा है। जो भी ऑफेंडर्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं फॉरेस्ट ऑफेंसेस में, फॉरेस्ट ऑफेंसेस जैसे कि एनक्रोचमेंट, टिम्बर स्मगलिंग, वाइल्ड लाइफ पोचिंग, इवन जो रिपीटेड ऑफेंडर्स हैं उनके अगेंस्ट हम प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, PD एक्ट इन्वोक करेंगे। सिर्फ ऑफेंडर्स ही नहीं, कई बार ऐसा होता है कि स्टाफ भी कनाइवेंस में होता है ऑफेंडर्स के, सो उस केसेस में भी हम सारे स्टेप्स ले रहे हैं टू एंश्योर कि कोई भी कनाइवेंस में ना हो। जैसे कि मेरे पास जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग पिछले 1 साल में निर्मल डिस्ट्रिक्ट अलोन, पिछले 2 साल में निर्मल डिस्ट्रिक्ट अलोन में हमने 16 स्टाफ को सस्पेंड किया है। 16 स्टाफ हैज बीन सस्पेंडेड। इसके अलावा हमने डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करी है, चार्जशीट किया है, इवन प्रमोशंस भी डिक्लेयर कर दिया है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर है कि जंगल बचाना है, हमें फॉरेस्ट वेल्थ को प्रोटेक्ट करना है। एंड इवन मेनी ऑफ द विलेजेस, काफी सारे हमने विलेजेस में देखा है कि हमें विलेजर्स हेल्प कर रहे हैं। विलेजर्स हमें इंफॉर्मेशन देते हैं कि कहीं पे कभी क्या हो रहा है, उनकी मदद से ये पॉसिबल हो पा रहा है। तो मैं प्रेस अटर्निटी के से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हम ये मैसेज पहुंचाने की हेल्प करें कि जो विलेजर्स हैं, जो लोग हमें हेल्प करना चाहते हैं, कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके कि फॉरेस्ट वेल्थ को, वाइल्ड लाइफ पोचिंग को रोका जाए, टिम्बर स्मगलिंग को रोका जाए, एनक्रोचमेंट ना हो, हमारी वेल्थ प्रोटेक्टेड रहे। तो ये मैसेज उन तक पहुंचे जिससे। और निर्मल, एक और बात मैं बताना चाहूंगा, खासकर निर्मल डिस्ट्रिक्ट में ऑनरेबल CM सर की गाइडेंस से, ऑनरेबल फॉरेस्ट मिनिस्टर सर की गाइडेंस से हम फॉरेस्ट कवर इंप्रूव कर पाए हैं, हम ट्री कवर इंप्रूव कर पाए हैं आउटसाइड फॉरेस्ट्री, और इवन हम वाइल्ड लाइफ का नंबर इंक्रीज हुआ है। तो ये उनकी रिलेंटलेस गाइडेंस की वजह से हो पाया है। सर, तुम चार्ट करना चाहो? ऑनरेबल CM KCR गारू ने चेपंडी कि जंगल बचाओ अभियान सबसे इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है पूरे स्टेट का। जंगल बचाओ अभियान में हरिता हरम से हम लोग प्लांटेशन करेंगे, एनक्रोचमेंट रिट्राइव करके वहां पर भी प्लांटेशन करेंगे। आदिलाबाद का ठीक हर खबर से बाखबर रहने के लिए हमारे YouTube चैनल AK न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।